क्या आप मीठी और खुशबूदार रसभरी के ढेरों टोकरों का सपना देखते हैं, लेकिन असल में आपको बस मुट्ठी भर रसभरी मिलती है? क्या आपको लगता है कि यह सब किस्म या मौसम की मनमानी के कारण होता है? तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस भरपूर फसल का राज, जिससे आपकी डालियां रस भरी से लद जाएंगी, वसंत की मेहनत में नहीं, बल्कि उन 3 आसान कामों में छिपा है, जो आपको ठीक अभी पतझड़ के मौसम में करने हैं। हमारे साथ बने रहे और आप जानेंगे कि कैसे अपने छोटे से रसभरी के बागीचे को एक असली रसभरी की फैक्ट्री में बदल सकते हैं। बगीचे में पतझड़ का मतलब मौसम का अंत नहीं, बल्कि यह तो अगले मौसम की शुरुआत है। यही वह समय है जब हम अपने पौधों के भविष्य के स्वास्थ्य और उनकी उपज की क्षमता की नींव रखते हैं। और रसभरी भी कोई अपवाद नहीं है। यदि हम पतझड़ में उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो हमें कमजोर पौधे मिलेंगे और परिणाम स्वरूप छोटे और इक्के दुक्के फल। तो आइए, इस देखभाल को बाद के लिए न टालें और सब कुछ सही तरीके से करें। Текущая температура воды, которая составляет около 27-30 градусов Цельсия, это просто идеальные условия для ее активной охоты. На что ловить? Мой главный совет — это, конечно же, троллинг, друзья. Это, пожалуй, самый эффективный и проверенный способ поймать по-настоящему крупную барракуду. Используйте массивные воблеры, которые реалистично имитируют ее основную добычу — сардину, скумбрию или мелкую барракуду. Оптимальная длина приманки — от 15 до 25 сантиметров, с заглублением до 5-7 метров. Важна и скорость проводки. Держите ее в диапазоне от 3 до 5 морских узлов. Не забывайте про кастинг на рассвете или закате, когда барракуда выходит на более мелкие участки, чтобы поохотиться. Попробуйте попперы или стикбейты. Эти приманки создают много шума на поверхности и провоцируют хищника на агрессивную атаку. Не стесняйтесь экспериментировать с цветами. Часто хорошо работают натуральные окраски, но иногда яркие, провокационные цвета могут дать неожиданно отличный результат. Следующий наш герой — могучий группер, или, как его еще ласково называют, морской окунь. Этот донный хищник — мечта любого рыболова, ценящего упорство и силу рыбы. Где искать? Групперы — настоящие мастера маскировки и предпочитают держаться вблизи скалистых рифов, коралловых зарослей, а также у подножия затонувших объектов на глубинах от 20 до 60, а то и 80 метров. Почему именно там? Эти места богаты укрытиями, где группер может прятаться от хищников и поджидать свою добычу, а также там сосредоточена богатая кормовая база, мелкие рыбешки и ракообразные. На что ловить? Здесь я рекомендую сосредоточиться на донной рыбалке или, как вариант, активном джиггинге. Используйте мощные донные снасти с достаточным запасом прочности и тяжелыми грузами, чтобы максимально быстро доставить вашу наживку прямо ко дну, минуя течение. Некоторые опытные рыболовы считают, что в этот период рыба становится менее осторожной и активнее кормится, особенно в утренние и вечерние часы, когда лунное освещение минимально. Луна находится в знаке Льва, что по астрологическим данным может способствовать большей энергии и активности в целом. В общем, это не новолуние и не полнолуние. Это значит, что нет никаких экстремальных факторов, которые бы могли резко и негативно повлиять на общую активность рыбы. Так что клев должен быть предсказуемым. Общее состояние и активность рыбы в ОАЭ в середине октября, как я уже говорил, находится на уверенном подъеме. Это классический переходный период от изнуряющего летнего зноя к более прохладной и комфортной зиме. Многие виды начинают активно кормиться, чтобы набрать жирок перед менее продуктивными месяцами. Хищники, такие как барракуда, королевская рыба и различные виды тунца, будут активно охотиться на многочисленные косяки мелкой рыбы,
которые приходят в прибрежные воды. Донные виды, такие как группер и люциан, будут более смело выходить из своих укрытий в поисках пищи. Это время, когда капризных рыб меньше, а активных, готовых к поклевке, гораздо больше. Так что, друзья, шансы на поимку достойного трофея очень высоки. Моя четкая оценка клёва на этот день. Хороший. Местами даже отличный. И вот мое краткое, но емкое обоснование этого прогноза. Стабильная, солнечная и безветренная погода с комфортной температурой воздуха и воды создает практически идеальные условия для активного кормления большинства морских видов. Отсутствие резких скачков атмосферного давления и ясное небо будут способствовать тому, что рыба будет находиться в своем привычном режиме, активно искать корм и не прятаться. Так что, друзья, 15 октября — это тот самый день, когда стоит отбросить все сомнения, бросить все дела и отправиться за настоящими трофеями. तो अब हम पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम की ओर बढ़ते हैं। यह है सही तरीके से की जाने वाली पतझड़ की कटाई। आप इसे अपनी रसभरी की झाड़ियों की बड़ी सफाई मान सकते हैं, जिसके बिना आपकी बाकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आप इस कदम को छोड़ देते हैं, तो वसंत में आपको मजबूत और स्वस्थ झाड़ियों के बजाय उलझी हुई और बीमार लताएं मिलेंगी। तो अपना कटर उठाइए और चलिए सफाई शुरू करते हैं। पतझड़ की कटाई का मुख्य उद्देश्य है सभी अनावश्यक और पुराने हो चुके हिस्सों को हटाना। रसभरी के मामले में यह मुख्य रूप से वे 2 साल पुराने तने होते हैं जिन्होंने फल दे दिए हैं। सोचिए, उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी पूरी फसल हमें दे दी है। अब वे केवल एक बोझ हैं। वे झाड़ियों को घना करते हैं, सूरज की रोशनी और हवा को नए तनों तक पहुंचने से रोकते हैं। और सबसे खराब बात यह है कि वे सर्दियों में कीटों और बीमारियों के लिए एक आरामदायक घर बन जाते हैं। लेकिन इन पुराने तनों को उन नए तनों से कैसे अलग करें जो हमें अगले साल फसल देंगे? दरअसल ये बहुत आसान है। पुराने 2 साल के तने हमेशा गहरे, लगभग भूरे या यहाँ तक कि भूरे सफेद रंग के होते हैं। उनकी छाल खुरदुरी होती है, अक्सर पपड़ीदार होती है और आसानी से निकल जाती है। छूने पर वे सूखे और भंगुर लगते हैं, जबकि इस साल उगे नए तने बिल्कुल अलग होते हैं। वे चिकने, लचीले, हरे भरे या हल्के भूरे रंग के होते हैं। वे जीवन से भरपूर होते हैं और हमें इन्हीं को बचाना है। और यहीं पर कई माली एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। पूरी तरह से सफाई करने की धुन में वे बिना सोचे समझे सब कुछ काट देते हैं, ये जाने बिना कि कौन सा पुराना तना है और कौन सा नया। ऐसा मत कीजिए। 1 साल पुराने नए तनों को काटकर आप अपने आने वाली फसल को अपने ही हाथों से बर्बाद कर देंगे, क्योंकि अगले मौसम में इन्हीं पर फल देने वाली टहनियां निकलेंगी। हर झाड़ी पर 5 से 8 सबसे मजबूत और स्वस्थ नए तनों को छोड़ दें। इतना काफी होगा। आस्क नाउ। अब बात करते हैं रेमोंटेंट रसभरी की। ये थोड़ी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि यह एक सीजन में 2 बार फल देती है। और यहां आपके पास एक विकल्प है, एक असली बागवानी रणनीति। पहला विकल्प उन लोगों के लिए है जो शुरुआती और देर से आने वाले दोनों तरह के फल चाहते हैं। इस मामले में पतझड़ में आप नए अंकुरों का सिर, सबसे ऊपरी हिस्सा काट देते हैं, वह हिस्सा जिसने गर्मी के अंत में पहले ही फल दे दिए हैं। आमतौर पर यह लगभग 20-30 सेंटीमीटर होता है। इससे क्या होता है? अगले साल इस तने के बचे हुए सर्दी बिता चुके हिस्से पर आपको सबसे पहली शुरुआती फसल मिलेगी। और फिर अगस्त सितंबर में वसंत से उगे नए अंकुरों पर फल पक जाएंगे। ये पूरे सीजन में फलों का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। दूसरा विकल्प थोड़ा ज्यादा कठोर है, लेकिन बहुत लोकप्रिय और आसान है। इसमें पतझड़ में रेमोंटेंट रसभरी के सभी अंकुरों को जड़ से काट देना होता है, कोई ठूंठ नहीं छोड़ना। हाँ, क्यारी कुछ समय के लिए खाली दिखेगी, लेकिन घबराइए नहीं। इस तरीके के बहुत बड़े फायदे हैं। आप सीजन भर जमा हुए सभी रोगों और कीटों से पूरी तरह छुटकारा पा लेते हैं, जो सर्दियों में जा सकते थे। और अगले साल झाड़ी पुराने तनों पर अपनी ताकत बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि सारी ऊर्जा नए मजबूत अंकुरों के निर्माण में लगाएगी।
नतीजतन आपको गर्मियों के अंत में एक लेकिन बहुत भरपूर और उच्च गुणवत्ता वाली फसल मिलेगी और साथ ही रस भरी के पौधों की देखभाल कई गुना आसान हो जाएगी। तो छंटाई का काम तो हमारा हो गया। हमारी झाड़ियां अब पुरानी और बेकार चीजों से आजाद हो गई है। उन्हें सचमुच नई जान मिल गई है। लेकिन जरा सोचिए, पूरी गर्मियों में हमारी रसभरी ने हमें भरपूर पैदावार देने के लिए कितनी मेहनत की है। उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा और पोषक तत्व खर्च किए हैं और अब लंबी और ठंडी सर्दी से पहले उसे हमारी मदद की बहुत जरूरत है। इसलिए हमारा दूसरा सबसे जरूरी काम है पतझड़ में सही तरीके से खाद डालना। यह सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि सर्दी में उसे सुरक्षित रखने और वसंत में उसे नई ताकत देने के लिए एक विटामिन कॉम्प्लेक्स की तरह है। और यहां मैं आपको एक सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा नुकसानदायक गलती से आगाह करना चाहूंगा। कभी नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं, पतझड़ में नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का इस्तेमाल करें। मैं ताजी गोबर की खाद, मुर्गियों की खाद, यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीजों की बात कर रहा हूं। नाइट्रोजन पौधों की हरी पत्तियों और शाखाओं को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप इसे अभी डालेंगे तो रसभरी को लगेगा कि फिर से वसंत आ गया है और वह नई टहनियाई और पत्तियां उगाना शुरू कर देगी। ये नई कॉम्प्लें न तो अच्छी तरह से पक पाएंगी और न ही ठंड के लिए तैयार हो पाएंगी। पहली गंभीर पाला ही इन्हें खत्म कर देगा और पूरी झाड़ी सर्दी में कमजोर और असुरक्षित होकर जाएगी। पतझड़ में रसभरी की जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं। उसे दो जरूरी तत्वों की जरूरत होती है, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम टहनियों को ठीक से पकने, उन्हें मजबूत बनाने और ठंड सहने की उनकी क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देता है। और फास्फोरस जड़ प्रणाली के विकास और मजबूती के लिए जिम्मेदार है, जो पूरी सर्दी झाड़ी को पोषण देती रहेगी। इसके अलावा पतझड़ में ही फूलों की कलियां बनती है, जो अगले साल की फसल का आधार होती है। और इस प्रक्रिया में फास्फोरस और पोटेशियम अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारी पसंद है सुपरफॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट, या फिर हम एक आजमाए हुए घरेलू उपाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साधारण लकड़ी की राख, जिसमें पोटेशियम और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। अब सवाल उठता है कि हम क्या डालें और किस तरह डालें। सबसे आसान और असरदार तरीका है रासायनिक खाद का इस्तेमाल। इसके लिए आपको सुपरफॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट की जरूरत पड़ेगी। इन नामों से घबराइयो नहीं, ये किसी भी अच्छी बागवानी की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। 1 से 2 बड़े चम्मच सुपरफॉस्फेट और एक बड़ा चम्मच पोटेशियम सल्फेट ले। यह मात्रा एक वयस्क रसभरी के पौधे या एक वर्ग मीटर की रसभरी की क्यारी के लिए काफी है। अगर आप जैविक खेती पसंद करते हैं, तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है लकड़ी की राख। ये पोटेशियम और कई जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों का बेहतरीन स्रोत है। हर पौधे के नीचे लगभग 1 से 2 गिलास राख भरपूर मात्रा में छिड़के। ये खाद का काम भी करती है और मिट्टी के हल्के अम्लीयपन को भी कम करती है, जो रसभरी के पौधों को बहुत पसंद है। लेकिन खाद को सिर्फ जमीन की सतह पर बिखेरना काफी नहीं है। इन्हें सावधानी से 5-7 सेंटीमीटर की गहराई तक कुदाल या छोटी रेक की मदद से मिट्टी में मिलाना होगा। इससे पोषक तत्व जड़ों तक तेजी से पहुंचेंगे। और आखिरी पर बहुत जरूरी काम है पानी देना। अगर पतझड़ का मौसम सूखा है, तो खाद डालने के बाद रसभरी के पौधों को अच्छी तरह से पानी जरूर दे। पानी दानों को घोल देगा और पोषक तत्वों को सीधा जड़ों तक पहुंचाएगा। आखिरकार हमारे पौधों को खाना खाने का समय मिलना चाहिए, इससे पहले कि जमीन जम जाए और सर्दियों की नींद में चली जाए। तीसरा और अंतिम चरण, जिसे हम सर्दियों के लिए तैयारी कह सकते हैं, उसमें हमने अनावश्यक शाखाओं की छटाई कर दी है और अपनी झाड़ियों को भरपूर पोषण दिया है। अब हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें आरामदायक और सुरक्षित सर्दियां मिले। और इसकी शुरुआत अजीब लगे, पर सच है, एक बड़ी सफाई से होती है। झाड़ियों के नीचे से गिरी हुई सभी पत्तियां, कटी हुई टहनियां, खरपतवार और किसी भी अन्य तरह के पौधों के कचरे को पूरी तरह से हटा दें। इस खजाने, उद्धरण चिन्हों में, को अगले वसंत तक अपने बेरी पैच में न छोड़ें।
कई लोग सोचते हैं यह सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा। ये एक खतरनाक गलतफहमी है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पुराने पत्तों और टहनियों के इसी ढेर में फंगल बीमारियों जैसे कि ग्रेमोल्ड या एंथ्रेक्नोज के बीजाणु सर्दियों के लिए एक आदर्श ठिकाना ढूंढ लेते हैं। यहीं पर रास्पबेरी मक्खी, घुन और स्पाइडर माइट जैसे कीटों के लार्वा और प्यूपा भी आराम से बस जाते हैं। कचरा छोड़कर आप असल में उनके लिए एक आरामदायक शीतकालीन होटल बना रहे हैं, जहां से वे वसंत में नई ऊर्जा के साथ युवा कोमल अंकुरों पर टूट पड़ेंगे। इसलिए सब कुछ अच्छी तरह से इकट्ठा करें और जला दें या प्लॉट से बहुत दूर ले जाएं। शरद ऋतु में झाड़ियों के नीचे की सफाई अगले मौसम में बीमारियों और कीटों से लड़ने में 90% सफलता की कुंजी है। झाड़ियों के नीचे साफ सफाई और व्यवस्था करने के बाद अब हम सीधे उन्हें ठंड से बचाने के तरीके पर आते हैं। इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। दरअसल मल्चिंग के जरिए हम रास्पबेरी की जड़ों के लिए एक तरह का गर्म कंबल तैयार करते हैं, जो उन्हें कड़ाके की सर्दियों से बचाता है। ये खासकर जरूरी है क्योंकि रास्पबेरी की जड़ें जमीन की सतह के काफी करीब होती हैं और बिना बर्फबारी वाली कड़ाके की ठंड में आसानी से बर्बाद हो सकती है। इस कंबल के लिए आप क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके कई विकल्प मौजूद हैं। उदासीन पीट, अच्छी तरह गली हुई खाद या बढ़िया क्वालिटी की जैविक खाद सबसे अच्छी रहेगी। आप चीड़ की पत्तियां या पाइन नीडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास हो। यह न केवल जड़ों को ठंड से बचाएगा, बल्कि मिट्टी को हल्का अम्लीय भी बनाएगा, जो रास्पबेरी के पौधों को बहुत पसंद आता है। चुनी हुई सामग्री को लें और उसे हर झाड़ी के निचले हिस्से के चारों ओर अच्छी तरह फैला दें। मल्च की परत काफी मोटी होनी चाहिए, 5 से 10 सेंटीमीटर तक। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी न करें। यह आवरण कई काम एक साथ करता है। सबसे पहले यह एक मजबूत थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, जो तापमान में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से पौधों को बचाता है। दूसरे, मल्च मिट्टी को हवा के कटाव से बचाता है। और तीसरे, वसंत में जब बर्फ पिघलेगी, तब यह जैविक खाद या पीट की परत उन पौधों के लिए पहली खुराक का काम करेगी, जो अपनी सुप्तावस्था से बाहर आ रहे होंगे। इस तरह आप एक साथ 2 काम साध लेते हैं, पौधों को ठंड से बचाते भी हैं और उन्हें पोषण भी देते हैं। देखने में तो सब आसान लगता है, कटाई, खाद देना और मल्चिंग करना, ये 3 अलग-अलग कदम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली और सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ये कटाई में नहीं है, न ही खाद देने में और न ही पौधों को ढकने में। असली रहस्य तो इन तीनों कामों के तालमेल और एकजुटता में है। अगर आप सिर्फ कटाई करेंगे, तो आपकी कमजोर झाड़ियां पूरी सर्दी भूखी रह जाएंगी। और अगर आप खाद तो देंगे, लेकिन पुरानी टहनियां नहीं हटाएंगे, तो आप सिर्फ रास्पबेरी को ही नहीं, बल्कि सभी हानिकारक कीटों को भी पाल रहे होंगे। वहीं अगर आप बिना देखभाल किए हुए रास्पबेरी के पौधों को ढक देंगे, तो आप बीमारियों के पनपने के लिए बस एक आदर्श माहौल बना देंगे। सिर्फ इन तीनों कामों को एक साथ और सही तरीके से करने पर ही आप एक बम्पर और शानदार फसल की नींव रखेंगे। यह सिर्फ देखभाल नहीं है, बल्कि भविष्य में मिलने वाली बेरीज की बम्पर पैदावार के लिए एक आदर्श माहौल तैयार करना है। यही वह अंतर है जो एक मामूली फसल को उन बाल्टियों से अलग करता है, जो बेरीज से लबालब भरी होंगी। तो आइए संक्षेप में दोहराते हैं। शरद ऋतु में सिर्फ 3 आसान कदम है। पहला काम, सभी पुरानी 2 साल की टहनियों को जड़ से सही तरीके से काटे। दूसरा, रास्पबेरी के पौधों को फास्फोरस और पोटेशियम दे और वसंत तक नाइट्रोजन का उपयोग करने से बचे। और तीसरा, सभी कचरे को साफ करें और जड़ों को मल्च की एक गर्म परत से ढक दें। ये तीनों काम अगले साल की बम्पर फसल के लिए आपका सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह उपयोगी लगा, तो कृपया इसे लाइक करके हमारा समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई बागवानी की युक्तियां ना चूकें। शरद ऋतु में रास्पबेरी की देखभाल के लिए आपके पास क्या खास तरीके या रहस्य हैं? यह हो सकता है कि आपको ऐसी कोई समस्या हुई हो
जिसका हमने जिक्र नहीं किया? कृपया इसके बारे में कमेंट्स में लिखें। आइए अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करें।